सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फाउंडर। श्वेता जी ने ये एक्शन इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि एजुकेशन 2020 से बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था। एंड वी हैड आल्सो, आई आल्सो जनरली फील दैट आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोस फ्रॉम 2017। ओके, व्हाई डिड आई स्टार्टेड इट? बिकॉज आई न्यू देयर इज समथिंग इन लाइफ which is constant, and that is change. Change is always constant in life. You can't sit for the change. About Orkut and Facebook. Okay, now if a new student who is a 2020 means after 2000 who have been born, they would not know about Orkut, but a 90 student would understand that Orkut and what is Facebook. Orkut got whipped off literally because it didn't update it, and it had to whip off. Okay, so Facebook entered in. So if there is no updatation with Facebook also, Facebook will also whip off. Like, you know, Facebook has been taken up by Instagram. So you have to constantly change. Okay, and if you don't change, you will not survive. So in 2020, many would be thinking like that, yeah, the situation will get normalized. But I, since I've started recording in 2017, so I started my funda that let's go on with the recording and the new culture of education online, work from home wala system. If the system gets normalized, we'll get to it. If it doesn't, we still are on the roads. Okay, and if you don't customize yourself over here, then you will obviously get whip off and you will not survive at this place also. Okay, so she also thought that way only, and she started it with the concept of opening it online and offline, making it a blend. You say always make a blend of it. Okay, don't do it fully 100% on the online, fully 100% on the offline. If it is not applicable for the offline, we will go for online now. And after seeing the criteria which I said you, we are having 2 offline centers at Kolkata. Obviously the scenario will be that we will having 20 centers in India, then we will be center in each state. So this will be our gradually increasing, and online will be for everyone. Okay, this is 3 states now, and now if I put a video on YouTube, it can get to all over India, it can get to all over the continent, and then it can go all over the world. Okay, it's just a matter of click. So we are focusing on that only. Obviously trigonometry of class 11 would not be different in Europe, would not be different in USA. Obviously it could be like that 11 का जो trigonometry इंडिया में है, यूरोप में वो 12 में हो रहा. बट ऐसा तो नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस लाइक इन क्लास, तो ऐसा थोड़ी ना यूरोप में साइन थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज. इट कांट चेंज ना. साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है आपका, जो आप और हम पढ़े हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, वी इंडियन स्टडी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. तो यूरोप वाले क्या पढ़े होंगे? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ऐसा तो नहीं होगा. हाँ, देयर कैन बी अ सिस्टम दैट it in Europe it is in class 11, the things which we have studied in class 10, because in whole world Indian education, you can say Indian education is the most difficult. Okay, that is why Indian educators are in say 12 also. So basically I am over here, you can see I'm looking handsome or not, it's up to you. So I teach mathematics and I have been teaching since a decade. Okay, and I know the tricks and know-hows. Like a student says, sir आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा करते हैं आप ही मेरे एग्जाम में चलिए, मेरे को 100 मिल जाएगा. These words have been in my ears since years and years and years, and I wanted to target this only. I wanted to target this कि मैं स्टूडेंट के साथ एग्जाम में तो जा नहीं सकता, ये तो इनअप्रोप्रिएट है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मुझे धक्के मार के निकाल देंगे स्कूल के टीचर्स, और ऊपर से आपका भी एग्जाम डिस्क्वालीफाई हो सकता है. तो ऐसा काम करे कि जो मैं जानता हूँ, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूं. क्योंकि देखिए जो चीज हो नहीं सकता उस पर दिमाग लगा के वो फायदा नहीं है. इट कैन बी अ फनी क्रैक जोक, वी कैन टेक इट एज अ वाइल. ओके, बट रियलिटी में मैंने ये दिल पे लिया और मैंने सोचा कि ऐसा काम करते हैं कि जो मैं आज यहाँ तो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में ऐसा सेट हो जाए, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि पुलकित अग्रवाल आपके साथ एग्जाम में जा रहा है और वही आपका पेपर सॉल्व कर रहा है. ठीक है, उसके लिए आपको 2-3 चीज करना होगा, जो मैं बताऊंगा वही फंडे अपनाने होंगे. आपको बस खाली होमवर्क करते वक्त
और पढ़ाई करते वक्त रिलीजियसली पढ़ाई करना होगा। कैसे पढ़ाई करना होगा? रिलीजियसली। वी ओनली स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, वी ओनली स्टडी फॉर द sake of studying. Wait a second. There are some students entering, so wait a second. Okay. तो अगर आप फॉर द सेक ऑफ स्टडी करना चाहते हैं तो वो 10th तक मैथ्स बहुत था। अगर आप सेक ऑफ स्टडी करना चाहते हैं तो क्लास 10 तक इट्स लाइक यू आर पुशिंग इट टू इट, बिकॉज इन इंडिया वी कांट से दैट मैं 8 तक मैथ्स पढ़ के छोड़ दूंगा, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है। वी हैव टू स्टडी टिल 10, so till 10 you are pushing it to maths. But if you are wanting to take 11 as your math subject, like if you want to take in science, take it. If you want to take in arts, don't get astonished. आर्ट्स में भी आजकल मैथ्स इंक्लूडेड होता है क्योंकि वी हैव अ डिफरेंट विविड ऑप्शंस टू टेक मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, एंड कॉमर्स में भी आपके ऑप्शंस हैं। सो मैथ्स इज इन एवरीवेयर, मैथ्स यहाँ भी है, मैथ्स वहां भी है, इधर चला मैं उधर चला, जहां भी चला मैथ्स मुझे वहीं मिला, ठीक है। यू हैव एन ऑप्शन टू कट इट ऑफ, but you don't have an option to get rid out of it, okay, because anyhow it will enter in your life anyhow. If you are getting rid of in class 10, means after 10 it can come into your exams. Like if you talk about the author also, like if she had an option that mujhe maths pasand nahi hai, but ऑनर्स किया, तो इनके करीबन 200 से 300 मार्क्स का मैथ्स तो आया ही था लाइफ में। अब अगर ये क्लास 10 में बोलती कि यार मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, मैं मैथ्स ही नहीं पढ़ना चाहती, मत पढ़िए, बट आपको वापस कॉलेज में दर्शन होंगे इनके। और यहाँ पे जब एसीएस है, ऑब्वियसली इन्होंने सीएस फाउंडेशन दिया है, तो वहां पे भी आपका 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स था। अभी के सिलेबस के हिसाब से चेंज हो चुका है या नहीं, बट 25-30 मार्क्स का मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स रहता है। और कॉलेज में अराउंड अभी हो गया आपका 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स, पहले था 150 मार्क्स का। यू कैन से अबाउट दिस बीकॉम कल्चर, बीकॉम एंड बीबीए, यहाँ पे भी 100-200 मार्क्स के आपके बेसिकली रहते हैं। देखा, जैसे मुझे इन्होंने रिप्लाई किया अभी एक स्टूडेंट ने, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, हर जैन, इट डिड सर, आई हैव टेकन बीसीए इन कॉलेज एंड इट डिड कम बैक टू मी, एंड इट डिड कम बैक टू मी। सो आपको इसको झेलना होगा ही होगा। तो अगर आप 10 तक भी बहुत सूटेबल है मैथ्स को लेके, देन ऑल्सो इट विल बी वेरी गुड टू यू, ओके। बट अगर आपका 10 तक पोर्शन वीक होता है तो आगे जाके आपको फ्यूचर में दिक्कतें होंगी, बट ऑब्वियसली आई एम देयर फॉर यू, I will be helping you. Okay, so let's make it a fun subject, learn it with ease. I believe mathematics should be done with ease. Okay, so now we are coming to a portal where we are discussing about class 11. Okay, so whenever I'm talking about class 11, there is a problem which we have to deal with. Okay, like if you were in class 10, you had a book which was, you can say, this much long. Okay, this much long in the sense this much width. Okay, now if you are coming into 11, your book becomes infinite. Okay, there is no limit call that book का कितना limit होगा, ठीक है। Why is it so? Because first thing, if you are learning mathematics in class 11, it will help you to create a knowledge for the future courses. Okay, second thing, infinite का मतलब क्या है? अगर आप नहीं पढ़ना चाहे तो आप जीरो भी रख सकते हो उसको, और अगर आप पढ़ना चाहे तो उसको इन्फिनिटी तक भी पढ़ सकते हैं, या फिर इंडियंस के हिसाब से आप कुछ जुगाड़ लगा के भी पढ़ सकते हैं। जुगाड़ इन द सेंस मतलब जो जो प्रोमिनेंट क्वेश्चंस है वो पढ़ लेंगे, चैप्टर्स के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कर लेंगे, उसी में मेरा काम हो जाएगा। देयर आर मेनी वेज ऑप्शन, but if you are talking about class 11 mathematics, this is basically a thing that if you solve 10 books also, the sums will never end, mathematics will never end. Okay, if I am talking about a chapter, you can say basically trigonometry, आपने अगर एमएल से सॉल्व किया होगा क्लास 10 में, या फिर आरएस से किया होगा, या किसी किसी ने थोड़ा सा जिंदगी में अल्ट्रा लेजेंड बनने की कोशिश की होगी तो उन्होंने आरडी से भी किया होगा, और जो दुनिया में एकदम फूक फूक के कदम रखते हैं उन्होंने पूरा एनसीईआरटी को खत्म कर दिया, ठीक है। बट आप बताइए, आपको क्या लगता है एनसीईआरटी एमएल आरएस आरडी में
ways to solve a sum. So sums are not limited. You can solve it anyway. But if you are in 11, you have to look out of the pond. Like आप 10 तक थे ना, आप एक कुएं के मेंढक थे, आपको जितना फीड किया गया आपने खा लिया और आपको लगा आप वहीं के राजा। बट जैसे आप 11 में आते हैं, आपको इस पॉन्ड से बाहर निकल के दुनिया को एक्सप्लोर करना होगा. हैविंग एन एक्सप्लोरिंग ब्रेन विल हेल्प यू आउट इन द फ्यूचर. अदरवाइज आप अगर मैथ्स प्रेशर से ले रहे हैं या वगैरह वगैरह रीजंस हैं, तो वो सब अपने क्लास के बाद में डिस्कस कर सकते हैं. अभी के लिए अपने यहाँ पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री. मूविंग ऑन टू द टॉपिक. सबसे पहले क्लास 10 का बात करते हैं. अब ये थोड़ा सा इंटरेक्टिंग सेक्शन होगा, तो आप लोग के माइक्रोफोन्स म्यूट हो सकते हैं, तो अनम्यूट हो सकते तो अच्छा होगा. ठीक है. सेकेंडली, अपने पास का बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉर्मलाइज रखिएगा ताकि ज्यादा शोरगुल ना हो. ठीक है. तो सबसे पहला चीज, क्लास 10 का एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करते हैं, तो क्लास 10 में ट्रिगो का एक्सपीरियंस कैसा था, एक एक करके बोले. स्टार्टिंग में मुझे हर्ष जैन दिख रहा है, तो आप एक बार बोल सकते हैं तो अच्छा होगा. Yeah, hello. हाँ, गुड आफ्टरनून हर्ष. Yeah, बेसिकली good गुड afternoon, इवनिंग. sir. हाँ. Actually, good evening, sir. Sir, तो actually, सर मेरा क्लास 10 में सर एक्सपीरियंस सर ट्रिको को लेके सर उतना तो अच्छा नहीं था, बट या बेसिक्स थोड़े थे. लाइक इट वाज इजी एट एट सम पॉइंट. उसके बाद जब आपका वो हाइड डिस्टेंस आता है ना, तो वहां पे भी कितना बार आपका ट्रिको लगता है. तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकेम हार्ड. Okay, so Harsh, now you can once a while mute yourself. I would be explaining something. So you said two things which I will be explaining you over here. Okay, height and distance. ठीक है. अब अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस देखें, सबसे पहला मुझे बचपन से एक चीज सुनने मिला, यार हम मैथ्स पढ़ते क्यों हैं? ये मैथ्स हम पढ़ते क्यों हैं? क्या होगा 60 वाटरमेलन्स लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके मैं क्या कर लूंगा? पैसा थोड़ी ना कमा लूंगा. ये क्वेश्चन है ना, बहुत जन पूछे हैं, और सबसे ज्यादा वही लोग पूछे हैं जो अनएजुकेटेड है, क्योंकि उनको लगता है कि आप पढ़ के कर क्या रहे हैं. ठीक है. तो फिर आप उनको ये बात बोलिए, सर आप पेरीमीटर क्यों बढ़ते हैं? लेंथ और ब्रेथ निकाल के आप कमरे का स्क्वायर फीट निकालते हैं. जब आप फ्लैट लेने जाते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है. ये आपको कैसे पता चला? ये आपको किससे पता चला? मैथमेटिक्स से ना पता चला, और किसी से तो नहीं पता चला. हालांकि आप ये बात बोल सकते हैं कि आपको फ्लैट का स्क्वायर फीट वगैरह के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 जगह बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. बट आप सोचिए, हाइट एंड डिस्टेंस का अगर हम बात करते हैं, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिशियन खड़ा है. ठीक है. आ गया. हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन खड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का पोल है, इसको यहाँ पे सीढ़ी लेकर आया. अब बताइए, अगर ये इलेक्ट्रिक वायर को ठीक करना चाहेगा, if he wants to correct the electric wire, he have to put a stairs over here. सीढ़ी को यहाँ रखना होगा. तो वो क्या करेगा? अब सीढ़ी को 60 डिग्री रखे कि 60 डिग्री रखे कि 30 डिग्री रखे, वो उस पर डिपेंड करता है, उसका लैडर का लेंथ पे डिपेंड करता है. अब अगर उसका लैडर छोटा होगा तो वो कोशिश करेगा इस लेंथ पे रखने का. ठीक है. बट उसका लैडर बड़ा होगा तो वो इस लेंथ में रखने का कोशिश करेगा. इसका रीजन क्या है? जैसे ही लैडर का लेंथ छोटा होगा, उसका बेस छोटा हो जाएगा, तो ये वाला लेंथ अपने आप ज्यादा जगह ले पाएगा. ऑब्वियसली इसको इस जगह तक पहुंचना है ताकि वायर पे इसका हाथ इधर तक पहुंच जाए, ना कि एकदम ऊपर पहुंच जाए, ना कि एकदम नीचे रह जाए, ताकि उसका हाथ ही ना पहुंचे. ओके. एंड इफ इट कीप्स इट लाइक 30 डिग्री, उसको चढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि 60 डिग्री बहुत स्टीप हो जाता है. आप सोचिए, आपका घर का सीढ़ी अगर 60 डिग्री होगा तो आपको हर दिन एक्सरसाइज करके चढ़ना होगा ऊपर. यही अगर आपका सीढ़ी 30 डिग्री पे होगा तो आपको चलने में आसानी होगी. सो अगर आप ये सब चीज नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री पूरा है. बट आप बोलेंगे मैं तो ये सब नहीं करता हूँ, मुझे तो घर पे बैठे रहना है, उतरने के लिए सीढ़ी है घर में. आप ये सब नहीं सोचते हैं. बट इफ यू थिंक फॉर अ वाइल, आप जब इन केस समझ लीजिए आप अपना घर ही डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी फॉर अ सॉर्ट ऑफ थिंग कर रहे हैं, तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि आपका बिल्डिंग का स्टेयरकेस का डिग्री इंक्लाइनेशन कितना है. ज्यादा डिग्री इंक्लाइनेशन होगा तो आपके घर के एजेड पर्सन को दिक्कत होंगे, क्या पता बच्चे भी गिर सकते हैं. तो these are the sort of things which we think over for trigonometry. Yeah, you can say that height and distance is not of use, okay, for a normal student, not of use. These are only used by civil engineers, those who are building roads and bridges.
बट आपको भी तो ज्यादा प्रेशर तो दिया नहीं, आपको भी तो क्लास 10 तक ही पढ़ाया, 11 में थोड़ी ना आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। वो उनके लिए आएगा जो लोग सिविल इंजीनियरिंग करना चाहेंगे फ्यूचर में, फॉर इफ दे टेक मैथ ऑनर्स इन द फ्यूचर्स। तो आपको भी बेसिक चीज पढ़ाया गया, बेसिक चीज भी नहीं पढ़ाएगा तो आपको कैसे सर्वाइव करेंगे। अब आप बोल देते हैं हाइट पेरीमीटर और वगैरह मत पढ़ाइए, तो आज आप फ्लैट देखने जाएंगे, स्क्वायर फीट देखेंगे, जगह का लोकेशन देखेंगे, तो आप उसके हिसाब से बात करेंगे। नाउ you can say that मेरा इसमें क्या काम है। Obviously you can be unaware of anything in your life and act as stupid for the whole public. So I don't want to feel like a bit stupid in every time. So knowing something is not bad. Okay. तभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ताकि वो कहीं पे कुछ बोल सके। वैसे ही मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आपको बोलता हूँ हाइट एट डिस्टेंस, तो अब अगली बार आप जाएंगे तो कभी बता पाएंगे कि ये डिग्री कितना इंक्लाइनेशन है। एटलीस्ट वो आदमी को ये पता होगा कि इसको थोड़ा मैथमेटिक्स आता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू Shruti Dubey, what is the experience of class 10? Has to go. Any other person in the panel? Mayank Dubey. Mayank Dubey, want to share your concept of class 10 trigonometry or should I move on? बोलो मयंक, क्या बोलना चाहते हो? चैट में बोलोगे, चैट में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। शुड आई अनम्यूट यू? हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ खराब नहीं था सर। मेरा 10th तक ट्रिग्नोमेट्री वाज स्ट्रॉन्ग, बट सर मेरे में हाइट एंड डिस्टेंस में इतना प्रॉब्लम नहीं था। मेरे आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन बिगड़ते थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाले। चलो वो मैं एक बिगड़ते ट्रिक थे। बताता हूँ। चलो आपने अच्छा चीज छेड़ा, मेरा सेकंड टॉपिक यही था आपको बताने के लिए। वो मेरे को याद करने की ट्रिक पता है, बट वो सॉल्व करने वाला नहीं पता है। जैसे मेरे को याद सारे सारे थे, पाइथागोरस थ्योरम से भी याद हो जाते थे, वो मेरे को याद सारे सारे थे, बट वो कहाँ लगाने हैं, किस तरह लगाने हैं, बस वो कभी कभी गलत। चलिए ये देखिए आपके लिए कॉमेडी है, आप एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ चलिए ठीक है, ये आपके लिए कॉमेडी सीन है। ट्रिगोनोमेट्री टू 10th क्लास स्टूडेंट्स, डरो मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका मेन कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पीछे के पेजेस देख लेते जो खाली है, ताकि मैं वहां पे डिस्कस कर सकूं। चलिए यहीं पे करते हैं, इन्हीं के साथ करते हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे इन केस अगर मैं आपको बोलूं मयंक, जैसे आपने बोला, आपको पता है ये आया कहाँ से है? पहले ये चीज पूछते हैं। मतलब ऑब्वियसली आसमान से कोई नहीं टपका, बट ये आया कहाँ से? एनी आइडिया मयंक? कि आपको बोल दिया, आपने याद कर लिया? यस सर, ये जैसे मेरे को बताया गया था, तो ये मैंने याद जो किया था वो किया था पाइथागोरस थ्योरम से, कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। इससे करके मैंने याद किया था। इसमें फिर मतलब एक एक करके आप पहले हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करो, फिर परपेंडिकुलर से डिवाइड करो, फिर बेस से डिवाइड करो, तब जाके वैसे निकल आया था। ऐसे ओके, मेरे दैट को इज वेरी समझ आया। गुड, दैट इज वेरी गुड। चलिए मयंक, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जैसे आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, वी हैव हर्ड अबाउट दिस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप इसको फर्स्ट में एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा पी बाय एच का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बी बाय एच। तो इसी कारण ये फॉर्मूला बना है। तो मयंक, आपका कॉन्सेप्ट 10 तक बहुत क्लियर है। नाउ सेकंड थिंग जो आपने कहा मुझे, कि हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे इन केस आपको कुछ ये चीज पता है कि ट्रिगोनोमेट्री को हर एक क्वेश्चन को आप 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मयंक? यस मयंक, सर, यस आपको सर। पता है वो ट्रिगोनोमेट्री को आप 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हर एक सम को
सॉल्व करने के 2-3 मेथड तो मिनिमम है ही, क्लास 11 में भी और हाँ। क्लास 10 में तो थे ही। जैसे एक था एलजेब्रा, एलजेब्रा से लगा के आप सॉल्व कर सकते नहीं थे। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग तरीके हाँ। से, जैसे इन केस अगर आपका टैन और कॉट है क्वेश्चन में, ठीक है, अब आपको हाँ, ये तो पता है कि आपको या तो टैन आप और इसको कॉट साइन को, और कॉस में कर लो, हाँ, या फिर दूसरे वे से बिना साइन कॉस खोले भी कर सकते हैं, ये या वाला तो चीज फिर आपको टैन और कॉट है, टैन और कॉट है तो टैन का रेसिप्रोकल मतलब कॉट को रेसिप्रोकल कर दे हाँ 1/tan, फिर कट एक्चुअली, जाएगा, कैंसिल होके तो चलो। ये वाला चीज कहाँ से आया, मैं ये वाला डिस्कस करता हूँ, एकदम शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, ध्यान देना, जिनको थोड़ा सा भी ट्रिगोनोमेट्री क्लियर होगा वो जल्दी से पकड़ पाएंगे। ये देखिए, आपको पता है साइन थीटा को आप 6 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर 6 ways टू एक्सप्रेस every trigonometric function into every other trigonometric aspect. For example, sin theta, एक बार मैं म्यूट कर दूं, हाँ, sin theta equals to sin theta, ये आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या लिख दिया, आप सोच रहे होंगे सर पगला गए, sin theta तो sin theta होता ही है, ठीक है, 1/cosec थीटा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैंने लिखा है साइन थीटा बट है किसी और के बेस में, किसके बेस में, कोसेक के बेस में, इसको आप बोल सकते डिस्गाइज्ड, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड, मतलब आपको दिख रहा कोसेक है बट आंसर साइन से रिलेटेड है, ठीक है। 3 इडियट्स वाला डायलॉग याद है, शब्द मेरे हैं, बोल ये रहे हैं शब्द मेरे हैं, तो बोल कोसेक रहा है, शब्द साइन के हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं उसका स्क्वायर रूट करूं तो ये भी क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब ये है किसके शब्द, प्रोफेसर के, बोल कौन रहा है, चतुर रामलिंगम, चतुर ही नाम था ना उसका, साइलेंसर बोलते थे उसको, हाँ साइलेंसर। मूविंग ऑन फर्दर, ये तीनों आपके लिए बहुत इजी था।